مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے، وہی لشکروں کا خدا ہے، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ آج کل ہم روزوں کے ایام منا رہے ہیں اور ہم روزے رکھتے ہیں۔ ہم خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ روزہ رکھنے سے نجات یا نعمت خدا کی طرف سے کوئی دوسری نعمت نہیں ملتی۔ خدا کی تمام برکتیں ہمیں جو ملی ہیں صرف اس کے فضل کے ذریعے سے ملی ہیں، اور کیونکہ اس کا فضل ہم پر ہے۔ جو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا نے پہلے ہم سے محبت کر کے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طرح محبت کرنی ہے۔ جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنا رحم ہم پر کرتا ہے اور اس کا فضل ہم پر رہتا ہے۔ یہی فضل ہمیں ہر جگہ گھیرے رکھتا ہے۔ اسی طرح آج کا جو کلام ہے وہ ایسٹر کا روزہ ہے۔ کس طرح ایسٹر نے روزہ رکھ کر اپنی پوری قوم کو بچا لیا۔ تو ہم روزے، جس طرح آج کل دنیا میں حالات ہیں، کیسے حالات چل رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو زبور 35 میں بھی لکھا ہے، یوں ماکومس کی 13 میں، کہ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹوڑا روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ مطلب کہ ہم دوسروں کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ جو آج ہم روزہ دیکھ رہے ہیں وہ ایسٹر نے اپنی پوری یہودی قوم کے لیے رکھا تھا۔ تو آج کا کلام ہے ایسٹر چیپٹر اس کا 4 اور اس کی 16 آیات میں یوں محکوم ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسا ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ایسٹر کون تھی؟ مردگی کا ایک یہودی شخص تھا۔ یہ اس کی چچا زاد نوعمر بہن ایسٹر جو بہت خوبصورت تھی اس کی بہن تھی، اور مردگی نے اپنی بیٹی کی طرح اسے پالا تھا، اور بادشاہ نے جب ایسٹر کو دیکھا تو اس پر فوراً اس کا دل آ بیٹھا اور اس نے ایسٹر کو ملکہ بنا دیا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسٹر ایک یہودی عورت ہے، اور مردگی اس محل میں ایک اعلیٰ درجہ پر فائز تھا اور کام کرتا تھا۔ اور ان دنوں کسی نے پلان کیا کہ بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو جب مردگی کو معلوم ہوا تو اس نے ایسٹر کو بتایا، اور ایسٹر نے بادشاہ کو خبر دی۔ اس طرح بادشاہ کی جان بچ گئی، اور مردگی وہاں پہ کام کرتا رہا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں ایسٹر اس ملک میں یہودیوں کو مارنے کے لیے پلان کیا گیا تھا، تو ایسٹر جو مردگی تھا اس نے ایسٹر کو یہ کہہ کے بھیجا، شاید تو اسی وسیلے کے واسطے، اسی لیے تو آج اس محل میں ہے تاکہ تو اپنے لوگوں کو بچا سکے۔ تو خاموش نہیں رہنا۔ اگر ہم اسی باب کی 14 اور 15 اور 16 آیات میں دیکھیں تو یوں محکوم ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصہ اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب ایسٹر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب دے کر بھیجنے کا حکم دیا، چونکہ مردگی روانہ ہوا اور ایسٹر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ اور ایسٹر نے انہیں حکم دے کر بھیجا کہ ہم سب روزے رکھیں گے، اور میں روزہ رکھوں گی اس لیے کہ میں جنگ میں جا رہی ہوں، میں بادشاہ کے پاس جا رہی ہوں جبکہ مجھے بلایا نہیں گیا، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، اور یہ پھر بادشاہ کی مرضی ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا کہ شاید میں ہلاک بھی ہو جاؤں، لیکن وہ کھڑی ہو گیا اور اس نے کہا میں روزے میں جا رہی ہوں، میری سہیلیاں بھی جا رہی ہیں، اسی طرح سوسن کے جتنے یہودی ہیں وہ سب روزے میں جائیں۔ اور پھر وہ سارے روزے میں گئے، وہ سارے خاکسار ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ یہودیوں کو بچانے کے لیے ایسٹر کا جو کردار اس نے ادا کیا، اس کے ذریعے سے سارے یہودی بچائے گئے اور فتح
याब हुए। एस्टर ने यहूदियों को बचाने के लिए बड़ी होशियारी से मंसूबा तैयार किया। पहले उसने बादशाह और हामान की दावत की और दावत के बाद उसने मर्दगी को मार डालने के मंसूबे पर अमल करना शुरू किया। उसने एक ऊंची सूली बनाई। जो वहाँ का जो ओहदे पर एक आदमी सरफराज था जो मर्दगी को मारना चाहता था, उसने उसके लिए सूली बनवाई ताकि ये उसको वहाँ पे लटका दे और उसे कत्ल कर दे। लेकिन एस्टर ने सारे प्लान के मुताबिक उसे ऐसा प्लान बनाया। खुदावंद ने जिस तरह कलाम में कहा कि कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार रहो। खुदा ने हिकमत दी और उसने सब कुछ किया और मर्दगी को कत्ल करने के बजाय हामान जो उसे कत्ल करना चाहता था उसी को उसकी तंजीम करनी पड़ी। इसी तरह जंग होती रही और यहूदियों ने अपने दुश्मनों पर फतह पा ली, सिर्फ एक औरत की बहादुरी की वजह से। और एस्टर ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया। एस्टर मलका ने अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो सब पूरे लोगों के साथ रोज़े में चली गई और सब ने मिलकर ये काम किया। आज अगर हम देखें तो दुनिया में कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हम सब मिलकर इस मकसद के लिए रोज़ा नहीं रख सकते हैं? ताकि खुदावन ने ये दुनिया बड़ी मोहब्बत से बनाई थी। वो तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो तो मेरा और आपका बाप तो बचाने आया था और वो हमें बचा कर चला गया। अब कोई मसीहा नहीं आएगा, मसीहा आकर चले गए, उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया। आज हम सब आज़ाद हैं उसके वसीले से, उसके वास्ते, क्योंकि अगर हम खुदा ने कहा मैं कलाम को पूरा करने आया हूँ। देखें, आदम ने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा मौत थी, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देकर हमें इस सज़ा से बचा लिया है और उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर दिया है। अगर हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते रहें, उसकी मर्ज़ी पे चलें, तो हम कभी नहीं मरेंगे, हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, हम हमेशा अबदी ज़िंदगी पाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ हमने खुदा के कलाम को लेना है, खुदा की हुक्मों को मानना है, खुदा की मर्ज़ी पर चलना है, ताकि खुदा का ज़िंदा कलाम हम सब पर अमल हो। जैसे एस्टर ने अपनी कौम के लिए सबको आगाही कर दी कि रोज़ा रखो ताकि सारे बचाए जाएं, इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 31 और 32 आयत में यूँ माकूम है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज खुदा का ज़िंदा कलाम मेरे और आपके पास है। जब ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में है तो हम कभी मर नहीं सकते, हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और यही बात है कि दवाइयों की जो कंपनी है, दवाइयाँ इश्यू हो चुकी हुई हैं, सब कुछ सिर्फ जब बीमार डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे क्या कर देता है, दवाई लिख के दे देता है, कहता है ये दवाई ले लो, तो वो ले लेते हैं, बीमार चंगा हो जाता है। आज मेरे और आपके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है जो हमें दे दिया गया हुआ है। हमें सिर्फ इस दवाई को लेना है, हमें सिर्फ कलाम को लेना है। ज़िंदगी लेनी है तो हमें कहाँ आना है, यीशु के पास आना है। अगर हमने शिफा लेनी है तो हमें यीशु के पास आना है। यीशु ही ज़िंदा है और यीशु ही मेरा और आपका शाफी है और वहीं शिफा है और कहीं शिफा नहीं और कहीं ज़िंदगी नहीं सिवाय यीशु के नाम से। हमें खुदा ने आज़ाद कर दिया। अब हम ये पुराने वो बातें रस्में मनाते रहेंगे, कब तक मनाते रहेंगे? हमें रस्मों को पूरा करने के लिए सिर्फ कलाम को लेना है, कलाम पर चलना है और कलाम ही हमारी ज़िंदगी और ताजगी है और कुछ नहीं। कि हम सालों साल ये करते आए हैं और कितने साल रह गए, कब तक ये करते रहेंगे? कि हम देखें कि हम
अभी भी वहीं खड़े हैं कि आगे बढ़ चुके हैं, कि अभी भी सीढ़ियाँ के पास खड़े होकर सोच रहे हैं ऊपर कैसे चढ़ेंगे। चढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं, एक कदम आप बढ़ाएंगे, बाकी 99 कदम 99 हमारा खुदावंद बढ़ाएगा। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा ले और खुदावंद हम सबको उसका वादा है, वो सबको बचाएगा। आए हम सब के लिए रोज़ों में चले जाएं, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा ने हमें दुनिया से मोहब्बत करना सिखाया, क्योंकि उसने चल कर दिखाया। उसने पूरी दुनिया जहां के लिए अपनी जान दी, उसने सब के लिए कफारा अता किया। उसने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए है, इसने कहा उस सब के लिए मैंने अपना खून बहाया है। और जो जो इसको फ्री ले ले, सच्चाई से ले ले, इस पानी में से पी ले, इस रोटी में से खा ले, वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। अगर कोई इस ज़िंदगी बख्श कलाम को ले ले तो ये ज़िंदगी देने वाला कलाम अबदी ज़िंदगी देगा। हमें सिर्फ कलाम लेना है, हमें सिर्फ कलाम ही लेना है। हमें ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, सिर्फ उसकी, हमारी सब की नज़रें इस कलाम पर होनी चाहिए। कलाम खुद खुदा है और खुदा कलाम है। आए उठें और खुदा के ज़िंदा कलाम को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, और एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होने के लिए खुदा ने हमें दिखाया है, खुदा ने हमें बताया है, खुदा ने चल कर दिखाया कि हमें एक दूसरे के लिए रोज़ों में जाना है, एक दूसरे के लिए घुटनों के बल जाकर दुआ करनी है, हमें एक दूसरे के लिए हाथ उठा के दुआ करनी है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखे। जैसे हमारे खुदावन ने हम सब के लिए ज़िंदगी दी। हम सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे मुल्क के लिए, अपने पूरी कलीसियाओं के लिए, अपने घरों और ख़ानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बल्कि अहले ज़ुबान, अहले उम्मत के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा ने हमें कहा, उसने ऐसा ही करके हमें दिखाया कि हमें भी ऐसा करना है। इसी तरह अगर देखें मकाशवा 5वां बाब उसकी 9 आयत में इस तरह महकूम है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान, उम्मत और कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीदा है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाह और काहिन भी बनाया है, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। ये खुदा ने हम सब के लिए किया। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ क्रिश्चियन ही एक दूसरे के लिए, उसने सब के लिए अपनी जान दे दी है। उसने अपना लहू बहा के सब को ख़रीदा है, और हम सब उसके लहू से ख़रीदे गए हैं। उसने सब की कीमत अदा की है, तो हम सब कीमती हैं, इसलिए हम सब के लिए दुआ गो हो रहे हैं। और जितने लोग हमारे बहन भाई मुश्किलों में हैं, जंग में हैं, और तमाम तरह की, हर तरह की मुश्किल में हैं, जंगों में हैं, तूफ़ानों में हैं, आंधियों में हैं, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ गो हों, ताकि खुदावंद उन सब को उस मुश्किल से निकाले। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, हमें उस वक्त में से निकलने के लिए लोगों के साथ गैप में खड़े होने के लिए दुआ गो होना है, ताकि जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे कोई हमारे लिए भी करेगा। हम अपने हाथों को बुलंद करते हैं बाप जी, हम सब मिलकर खुदाम जी जितने लोग मुश्किल में हैं खुदाम उनके लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि बाप आपने कहा मैं ही तुम्हें हर मुश्किल से, हर तकलीफ से, हर दुख से बचाऊंगा। क्योंकि खुदावंद आपने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो जाता, आपका हाथ छोटा नहीं बाप। जहां हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते, जहां दुनिया नहीं जा सकती, लोग नहीं जा सकते, लेकिन मेरे बाप का हाथ जा सकता है। ए बाप उस शाफी हाथ को, बड़े हुए हाथ को मैं सबके लिए मांगती हूँ बाप जी, सबको बचा ले बाप, सबकी हिफाजत करें, हर घर में, हर जिंदगी में नजात आए, ताकि हम सब मिलकर दुआ करें। जब हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो ही हमारी दुआएं आसमान तक पहुंची जाएंगी। और जिस तरह वो 120 के जमात में सब खुदा के शागिर्द, सब पाक लोग खड़े होकर दुआ कर रहे थे, कमरे में थे, बंद थे, और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना, ज़मीन हिल गई। इसी तरह जब सदर मिस्र, जब
जंग में थे उन्होंने भी दुआ की, खुदा ने उन्हें बचाया। दानियल उनके लिए दुआ कर रहा था। इसी तरह हमें एक दूसरे के लिए गैप में खड़े होना, जिस तरह एस्टर ने अपने आप को लिया, उसने ऐलान किया और उसकी सहेलियां और पूरे शोषण के यहूदी लोग जितने थे सब रोज़े में चले गए, मिल कर गए ताकि खुदावंद के पास जाएं, क्योंकि खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3, जहाँ इतने हज़ारों की तादाद में होते हैं, खुदावंद सबकी दुआओं को सुनता है, खुदावंद सबके दिलों को जानता है। हमें सब के लिए दुआ करनी है ताकि सब बचाए जाएं, क्योंकि सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। जब हम बहन भाई होकर एक दूसरे को दुख में नहीं देख सकते, हम एकदम खड़े हो जाते हैं। इसी तरह हम मसीह में सब बहन भाई हैं और सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करें, सब के लिए दुआ करें ताकि सब बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं, क्योंकि खुदावंद सबसे यकसा मोहब्बत करता है। खुदावंद सबके साथ हो, खुदावंद सब के लिए हाथ उठाते हैं, सबके लिए बरकत को मांगते हैं, आपके बड़े फजल को मांगते हैं। खुदावंद जो रोज़ा रख कर आप हम पर फजल करते हैं, हम पर तरस खाते हैं, खुदावंद वही तरस हम सब के लिए मांगते हैं। सब पर रहम करें। और खुदावंद जी जितने घर हैं उन सब के लिए हाथ उठाते हैं, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों में नजात आए, शादमानी आए, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।